Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the opportunity for civil engineers, Airport Authority of India, manager position with 3 years experience after BTech in civil engineering. You are eligible to apply for this particular job. Let me within 1 minute tell you about the opportunity. So this notification came in July, and you may have your exam in September because till 7th September form filling is going on. So if you have not filled the form, you can fill the form. These are the number of seats for manager civil, 145 seats, out of which 62 are UR seats, that is unreserved, and 3-year job experience of civil engineering, 3 years is asked. 8th August form filling started, until 7th September you can fill this form. And this is the job experience required. If you're working in central government, state government, public sector, so if you're working as junior engineer, it will take you 25 years to come to the level of manager. So maybe it is one step above assistant engineer. So if you want to work as manager in airport authority, which is a very good job, तो आप एज अ जूनियर इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको 3 साल हो गए एज अ जूनियर इंजीनियर, इसमें अप्लाई करो. सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में अगर आप एज अ जेई काम कर रहे हो, एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब कर रहे हो, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कोल इंडिया में जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जो रिमोट लोकेशन है, दे वांट टू शिफ्ट, जैसे एनएचपीसी में जॉब कर रहे हैं और वो रिमोट लोकेशन है, दे वांट टू कम इन द सिटीज, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है. सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 250 प्लस लोग काम करते हैं, तो यू कैन अप्लाई इन दिस, या ये क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी कंपनी बड़ी, जैसे एलएनटी वगैरह कंपनी है, उसमें से भी आप कर सकते हैं. 32 इयर्स मैनेजर का 32 इयर्स है, ओबीसी के लिए 35 इयर्स, एससी एसटी के लिए 37 इयर्स, और सैलरी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स. सो द वेरी गुड इमोलूमेंट्स, वेरी गुड फैसिलिटीज. सो 21 लाख पर एनम इज द सीटीसी फॉर मैनेजर. तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो ऑब्जेक्शन चाहिए अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं. दीज आर द डोमेन्स, इफ यू आर वर्किंग इन दिस डोमेन्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉल गुरविंदर सर. द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ गुरविंदर सर इज गिवन विद माय दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. तो इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ दिस डोमेन्स you should try for Airport Authority of India manager position, and I'm telling you 145 seats is a big number for manager. Now telling you about the paper, so there will be 2 part, duration is 2 hours. Part A is general knowledge, general intelligence, general aptitude. General knowledge is also related to airport, so Yourpedia will provide you that. So Yourpedia has already started the dedicated module for Airport Authority of India, and you can join it because it is one of the best content is available for you. Paper 2, 70% weightage is for this. So engineering, mechanics, strength of material, structural analysis. So you can see this syllabus. This syllabus is provided by Airport Authority of India only, and now being covered topic to topic, point to point, as per the difficulty level of the paper by mentors of Yourpedia. Geotech. So if you start preparing now, I think very effectively you can prepare, friends. एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती. मैंने कभी भी इतनी नंबर ऑफ सीट्स मैनेजर की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नहीं देखी. कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सर्वेइंग, हाईवे इंजीनियरिंग, तो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं आपके. एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऑलरेडी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है. एडिशनल टॉपिक्स में ये दे रखा है फ्रेंड्स, तो एडिशनल टॉपिक्स आप नॉर्मली करते नहीं हो, तो योरपीडिया आपको एडिशनल टॉपिक्स सारे करवा रहा है. तो यू कैन डू दिस टॉपिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट्स एंड ऑल. You can call Govinda sir on this number and join the module of Yourpedia. Now, my today's lecture is related to green building. तो क्या होता है green building? See, green building is not green in color. Don't think that way. ऐसा नहीं कि जैसे मेरा शर्ट का कलर है और कोइंसिडेंस है, ग्रीन बिल्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ग्रीन कलर की शर्ट जो डाली, दैट इज अ कोइंसिडेंस ओनली. सो ग्रीन बिल्डिंग इज लाइक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. सो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमें सस्टेनेबल बनाना है चीज को, तो ये मटेरियल से रिलेटेड भी है. ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे बैम्बू उसका एग्जांपल है. तो मटेरियल जो मैं यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस जो मैं यूज कर रहा हूँ, और जो मैं सारे का सारा अंदर बिल्डिंग के अंदर जो मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, वो सस्टेनेबल हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन से रिलेटेड हो, उस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं. तो मेरा आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो सारे का सारा ग्रीन बिल्डिंग डेफिनेशन के साथ है. ये मैं कंटेंट आपको भेज चुका हूँ. इस कंटेंट में आप देखोगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके ग्रीन बिल्डिंग में, वो इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा है. जैसे यहाँ पेड़ भी होने चाहिए, पेड़ पौधे आसपास होने चाहिए, आपके अंदर भी क्लियर होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए,
आपका जो एनर्जी स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेज आप यूज करें, रूम आपके एयरी हो, वो सारे के सारा ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है। तो क्या है ग्रीन बिल्डिंग, डेफिनेशन क्या है इसका? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। बेसिकली एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट सारी लाइफ साइकिल में। तो द बिल्डिंग एंड द स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन सच अ वे दैट एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, रिस्पॉन्सिबल हो और एनर्जी एफिशिएंट हो पूरी लाइफ साइकिल में। वट एवर आई एम यूजिंग इन द बिल्डिंग और फॉर द बिल्डिंग वो इस तरीके से हो। अगर मैं पेंट भी यूज कर रहा हूं तो आई शुड यूज सच अ पेंट जो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे। बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा सोलर रेडिएशन को, तो अंदर टेम्परेचर कम बढ़ेगा, जिससे एसी की कंजम्पशन कम होगी। ये भी उसका ग्रीन बिल्डिंग का एक एग्जांपल है। दिस इज एग्जांपल फॉर दैट। जो ऑक्यूपेंट है, लोग अंदर रहते हैं, वो हेल्दी रहें। देखो हेल्थ से भी रिलेटेड है ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। जो सस्टेनेबल मटेरियल है उसको यूज करें। अगर मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग सम कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड नॉट बी नॉन सस्टेनेबल, and waste should be minimum, and energy I am to conserve, water I am to conserve, and certainly there are some codes like American code of LEED and Indian code and other countries code IGBC, and GRIHA is Indian code. So these are the codes which certify that yes, your building is a green building. तो code का lecture next lecture होगा। तो green building basically is the building in its design, in its construction and in its operation. So design part also is taken care of. The design of the building should also consider. So building becomes green at the stage of designing, then construction, the material which I use, and then operation, energy efficient things I'm using. I'm not wasting the energy, which actually in the green building I'm using the appliances. They should be energy efficient appliances. So I'm not basically using any of the appliance which may make my building basically energy wastage oriented building. So this is how I'm to consider this particular concept. Now negative impact is to be reduced and positive impact is to be created for environment and all these things. Natural resources are to be conserved. So what are the principles? These are the principles. एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स जैसे लाइटनिंग हो गया, या आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया, सोलर पैनल हो गया। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस शुड बी मिनिमम। जैसे अगर मैंने सोलर पैनलिंग कर रखी है अपने बिल्डिंग में, अगर मैं सोलर एनर्जी यूज कर रहा हूं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। देन वाटर कंजर्वेशन, अगर मैं वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, जो गंदे वाटर को रिसाइकिल करता है, और कंजम्पशन की रिड्यूस कर दूं मैं, तो दैट आल्सो बिकम्स द एग्जांपल ऑफ दैट। देन सस्टेनेबल मटेरियल, आई एम टू यूज ग्रीन मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स लाइक बैम्बू, रिसाइकल्ड स्टील, टिम्बर, जो ड्यूरेबल हो एंड सस्टेनेबल हो। इंडोर एनवायरमेंट क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइटिंग हो, नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स यूज करें। इन द एग्जाम क्वेश्चन में कम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। सो यू शुड नो दैट इट इज आल्सो रिलेटेड टू द इंडोर एयर क्वालिटी। साइट सिलेक्शन also, yes, sustainable site selection. So I am to choose the site for making building such that it is not creating trouble with the natural ecosystem. तो जो नेचुरल लैंडस्केप है या किसी और का हैबिटेट है उसको मैं डिस्ट्रॉय ना करूं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सेस मिले। सो आई कैन नॉट मेक अ बिल्डिंग बाय कटिंग द फॉरेस्ट। तो सस्टेनेबल कैसे हुआ? अब उन्हें मैंने ग्रीन बिल्डिंग बनाई ग्रीन बेल्ट को कट करके, तो ग्रीन बिल्डिंग नहीं हुई। आप जंगल कट करके अगर कितनी भी अच्छी रिसोर्स एफिशिएंट बिल्डिंग बना लो, लेकिन जो जंगल में ट्रीज है उससे ज्यादा ग्रीन क्या हो सकता था? सो डोंट डू दैट। वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन रिडक्शन पे फोकस हो। सो ये हेडिंग याद कर लेना फ्रेंड्स कि क्या प्रिंसिपल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन बिल्डिंग। फिर इसके कोर बेनिफिट क्या है? एनवायरमेंट को बेनिफिट है, आपको हेल्थ को, आपकी हेल्थ पे बेनिफिट है। सोशल मतलब आपकी हेल्थ, कंफर्ट, और जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव फील करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। इकोनॉमी, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप एनर्जी एफिशिएंट यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है वो। तो ये उसके बेनिफिट हैं। बहुत से फीचर्स हैं जो किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर, अदर रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, पॉल्यूशन वेस्ट रिडक्शन मेजर्स, रीयूज, रिसाइकलिंग, जो ट्रिपल आर है आप उसको यूज करते हैं। रिड्यूस वेस्ट, जैसे 3R होते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के, जिसमें एक होता है कि आप वेस्टेज को रिड्यूस करें, फिर आप
चीजों को रीयूज करें, फिर आप उसको रिसाइकल करें, ये तीनों आर ग्रीन बिल्डिंग का पार्ट है। इंडोर एयर क्वालिटी अच्छी होती है, आप नॉन टॉक्सिक और सस्टेनेबल मटेरियल्स को यूज करते हैं। एनवायरनमेंट का कंसिडरेशन आप डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशन में, ये तीनों टर्म्स को याद करना। तो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में आप सोचना स्टार्ट करते हो एट द वेरी इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, जिसमें डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन तीनों आता है। So quality of life of the occupant in design, construction, operation, right? So this is the part of this. Any building can be green building, चाहे वो घर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिल्डिंग हो, अगर उसमें ये फीचर्स हैं। सारी ग्रीन बिल्डिंग एक जैसी नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन प्लेस टू प्लेस देयर आर वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफरेंट। किसी जगह पे आप ग्रीन बिल्डिंग कोड जो बनते हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग कोड जो हैं वो बेसिकली कंट्री टू कंट्री थोड़ा सा वेरी भी करते हैं। किसी जगह पे आप ज्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करते हो, किसी जगह पे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करते हो, तो ग्रीन बिल्डिंग कोड सेम नहीं है। इंडिया में ग्रीहा फुल फॉर्म याद कर लो अभी, एंड यूएस में लीड, ये फुल फॉर्म यूज करो, और इंडिया में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सो इंडिया का जो ग्रीहा रेटिंग सिस्टम, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इंटीग्रेटेड हैबिटेट मींस आप जब वहां पे रहने के लिए अपने लिए बना रहे हो घर, तो जो बाकी इकोसिस्टम का हैबिटेट है वो खराब नहीं करना है। प्रिंसिपल्स क्या है ग्रीन बिल्डिंग के? तो की प्रिंसिपल्स क्या है? सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ऑक्यूपेंट वेलबींग, ये तीन चीज पे फोकस है। सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड वेलबींग, वेलबींग ऑफ द ऑक्यूपेंट, पीपल, उनका वेलबींग। सस्टेनेबिलिटी, मटेरियल जो यूज कर रहे हैं सस्टेनेबल हो। एफिशिएंसी, एनर्जी जो यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज करनी है। तो सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड वेलबींग। तो हर पॉइंट जो है वो बेसिकली फोकस करता है हाउ टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनर्जी, सेव एनर्जी एंड सेव वाटर। तो एनर्जी, वाटर के ऊपर बहुत फोकस है, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट सिस्टम्स हम यूज करते हैं। रिसाइकल द बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, जो भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज होता है, दैट मटेरियल शुड बी रिसाइकलेबल। आई एम टू रिसाइकल इट, reduce, recycle and that ये जो तीन आर हमने डिस्कस किया वो तीनों इसमें होने चाहिए। सेलेक्ट लो इंपैक्ट मटेरियल, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली मटेरियल्स। मिनिमम डैमेज टू नेचुरल सराउंडिंग्स एंड वी हैव टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। वी हैव टू क्रिएट community interaction, green building by improving quality of life of the people and social aspect of the green building. We have to make the building durable so that हमें reconstruction की requirement ना पड़े। reduce, reuse, recycle, वो सारी के सारे terms हम यहाँ पे use करेंगे। So air quality, natural lighting, occupant comfort भी इसमें होता है, ये terms हैं which you have to understand. So suppose choice comes green building focus on occupants comfort. So आपको लगेगा नहीं यार occupant comfort तो हमने पढ़ा नहीं है, comfort की बात तो नहीं होती है, लेकिन होती है, occupant comfort की बात भी होती है। So we have to think over that. Minimize construction and demolition wastage, C&D बोलते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन करते टाइम और जब उसको डिमोलिश करना पड़े तो वेस्टेज ना हो। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं इससे जब आप ब्रांडिंग करते हो। फिर देन देयर आर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। सो ये क्वेश्चन सारे के सारे बनाए गए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे कि ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है, तो योरपीडिया के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे वे में, अगर एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको ऐसे बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एग्जाम में जैसा आपका क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से फ्रेम होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से कि ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा एंड आपने वो क्वेश्चन को तैयार करना है। आपको कंटेंट दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आपने कंटेंट करना है, वीडियो सुनना है, फिर कंटेंट पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी, तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर कैन मेक अ बिल्डिंग ग्रीन? ऑल ऑफ दिस। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड वाटर, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, गुड इंडोर एनवायरनमेंट लाइक एयर क्वालिटी। ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फ्लाई ऐश बेस, पोर्टलैंड, पोलोजाना सीमेंट, पीपीसी जिसको बोलते हैं,
इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लाई ऐश, बैम्बू वगैरह इसको यूज करते हैं। लीड का फुल फॉर्म ये हमने पढ़ा, डिटेल में लीड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन लीड क्या होता है और इंडियाज नेशनल रेटिंग सिस्टम क्या है वो ग्रीहा है। रिसोर्स एफिशिएंसी ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का मेन थीम है। ओके, सो बाकी सारे हैं एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, रिड्यूस एमिशन, हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट। तो इसको करो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का पार्ट है आपका। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से सिलेबस करो और इस एग्जाम को निकालो। थैंक यू।